हेलो सो हाय इन्वेस्टर्स। आई थिंक लास्ट टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया फ्रॉम द SaaS companies that we were discussing. That series will continue. I will bring another video on some newer SaaS companies, but I wanted to discuss a thesis today on associated alcohol and breweries. And this is part of एक नया framework which I've developed, a new thought process that I've developed on investing with expectations. So I just wanted to discuss that because up till now this has really worked well for me. So I just wanted to, and I have never heard about this sort of a framework somewhere else. So I wanted to discuss that. The flow of this is going to be, we're going to discuss market cap first, right? कि market cap का मतलब क्या होता है जब आप किसी कंपनी की market cap देखते हैं, what story does it tell us? Then we'll try to look at the entire alcobev space, try to analyze it from a market cap perspective, from a revenue perspective, and then from a margin perspective. And then we will try to imagine market cap as a continuum of expectations and try to look at where associated alcohol ka expectations are and how like any sort of expectation speed can move the needle in terms of valuations. Then we'll discuss some recent events, थोड़ा antithesis और फिर एक disclosure होगा. See the basic idea is कि यहाँ पे मैं कुछ बहुत बेसिक में थीसिस डिस्कस नहीं करने वाला हूँ. आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि आपको एक बेसिक थीसिस पता है कि कंपनी किस तरह का काम करती थी. आई ब्रॉडली टच अपॉन इट, बट वो जो न्यू लॉन्चेस है कि हिलफोर्ड विस्की, निकोबार जिन, या फिर जो कल्चर इनकी रेडी टू ड्रिंक आ रही है, या फिर जो टकीला आ रहा है, या बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं, मैं उसको ऐसा डिटेल में, या टाइटेनियम वोडका, ये सब ऐसे डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ. आई जस्ट ब्रॉडली गिव यू अ जिस्ट इन टर्म्स ऑफ how do I think like the different things can sort of, right? So the first thing is about market caps, right? जब भी हमें कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं, what I'm saying here is that it tells us a story. It tells us a story which is based on the revenues of that company. The potential of that those revenues to grow is also included in the revenues of those companies. And secondly, the quality of those revenues, right? कि वो revenues उस कंपनी को किस तरह का मार्जिन दे रहे हैं, कितनी प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ वो मार्जिन दे रहे हैं, कितनी प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ उसकी अर्निंग्स करा रहे हैं. ये दोनों नीडल्स जब मूव करते हैं, रेवेन्यूज जब आगे बढ़ते हैं क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, या फिर यू सी अ फॉरवर्ड लुकिंग स्टोरी, और द क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स improves gradually, companies which are like out of line in terms of the top 10 companies in their industry, they tend to move forward. And this is like a very new perspective, for which it was a new perspective when I developed it. But idea यही है कि revenues और quality of those revenues, यही दोनों चीज़ें हमें कंपनी की broad description होती है जो हमें market cap से पता चल जाती है. So how do I now like validate this with looking at the alcobev space in India? तो मैंने यहाँ पे market cap को highlight कर रखा है, sales को highlight कर रखा है, और प्राइस टू सेल्स मल्टीपल को मैंने लिया है. सो आई हैव नॉट टेकन पीई, बट आई हैव टेकन प्राइस टू सेल्स मल्टीपल, क्योंकि अर्निंग्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे इन कंपनियों में होती रहती है, राइट? सो इफ यू लुक एट द लार्ज कंपनीज, राइट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसका 100% ब्रांडेड रेवेन्यू है, तो एक मार्जिन प्रोफाइल नेचुरली 18% की तरफ टेंड करता है, राइट, विच इज लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री. देयर आर कंपनीज विच आर परफॉर्मिंग बेटर, बट अगर इस साइज पे आप देखो तो रैडिको 14% पे, ये लोग 18% कर पाते हैं. और साथ में इनकी सेल्स जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ी है, राइट? दे आर 12,000 crore in sales, and therefore they get a very high multiple because the market sees that the alcohol industry is such and such size in India, the sales numbers will expand, but this company also has a portfolio of brand that is going to be able to churn out an 18% margin. अगर आप इसमें हाईएस्ट मार्जिन को देखें, राइट, ओपीएम को देखें, तो आपको दो कंपनियां मिलेंगी. एक सुला वाइनयार्ड्स मिलेगी, एंड द सेकंड वन विल बी पिकाडली एग्रो, राइट? Picardly Agro makes a 23% operating margin. You have Sula Vineyards which make about 24% of margins, right? पर Sula Vineyards को इतना बढ़िया sales multiple नहीं मिलता. It gets about 4 times sales multiple, but Picardly Agro gets an 8 times sales multiple. तो इसके अंदर एक और कहानी आ जाती है कि उस रेवेन्यू को मार्केट कैसे देखती है, हाउ मच कैन इट एक्चुअली एक्सपैंड, राइट? क्योंकि वाइन की मार्केट इतनी बड़ी नहीं है. सुला आई थिंक इज मोर देन 30-40% ऑफ द वाइन मार्केट इन इंडिया एट दिस पॉइंट. तो इसीलिए उसको इतना बड़ा मल्टीपल नहीं दिया जाता, क्योंकि रेवेन्यूज कितने बढ़ेंगे उसके ऊपर मार्केट को एक तरह से डाउट है वहाँ पे, जबकि वो मार्जिन बहुत बेहतर तरीके से कमा पा रहे हैं. पिकैडली के केस में रेवेन्यूज बहुत छोटे हैं, 700-800 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज हैं, इसलिए उनको मल्टीपल ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो अक्रॉस द इंटायर पोर्टफोलियो दे ट्राइंग टू लॉन्च ब्रांड्स एंड दोज ब्रांड्स आर डूइंग वेल. सो इफ दे ग्रो, ऑटोमेटिकली लाइक the size of the company will expand, and the market cap has that expectation within it with the kind of sales multiple that it is getting. But the broader idea is कि जितने भी branded players हैं,
आप रैडिको खैतान को देख लीजिए, आप पिकाडली एग्रो को देख लीजिए. If there is an expectation that they will expand in the future in terms of their revenues, the idea is that they will get a really high sales multiple. And that is just evident from, this kind of slide. So 7 times sales multiple, 8 times sales multiple, at least like 4 or 5 in the case of Tilak Nagar Industries or allied vendors. इस तरह का आपको sales multiple देखने को मिलता है, which just tells us like a really interesting story, right? Now, one part is understanding market caps. One part is understanding revenues, the quality of those revenues, and how that influences market cap. The other part is to understand what a good investment essentially is, right? Any good investment is just an expectations beat, right? मुझे किसी बहुत समझदार आदमी ने एक बार कहा था कि गुड इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट एंटिसिपेटिंग द एंटिसिपेशन ऑफ अदर्स. जहां पे भी आपको एक ऐसा चांस मिलता है कि समथिंग कैन हैपन which will beat the anticipation of some other person, and that person will start to anticipate something from that point, right? That is a good investment because you're anticipating the anticipation of somebody else, right? So if something, as you know, that there's a path like A, B, C, 3 steps हैं. आप अगर ए पे उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दो, उस जगह पे इन्वेस्ट कर दो, तो आपको पता है कि बी तक जब वो पहुंचेगी तो ऐसा आदमी आ जाएगा जो कहेगा कि सी की स्टोरी अवेलेबल है. तो यू आर एंटिसिपेटिंग हिज एंटिसिपेशन एंड देयरफॉर यू मेक हायर रिटर्न्स, राइट? So essentially you have to essentially you have to find a company where there would be some sort of an expectation speed. और मार्केट कैप, पी रेशियो, पी एस रेशियोज हमें एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताते हैं. इसलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज दे टेल अस दैट व्हाट इज द मार्केट एक्सपेक्टिंग. और इसी एक्सपेक्टेशंस बीट को समझ के हम बेटर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, राइट? तो अब इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैप्स कैसे हमें, हाउ डू दे टेल अस अबाउट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ एसोसिएटेड अल्कोहल, राइट? तो अभी अगर आप एसोसिएटेड अल्कोहल को देखो तो 1766 करोड़ के करीब का इनका रेवेन्यू था लास्ट ईयर में. 10% ही उसका फ्रॉम IMFL प्रोप्राइटरी था, और उससे और भी कम परसेंटेज पीएनए से होगा, क्योंकि पीएनए में बस प्रेस्टीज एंड अबव में बस हिलफोर्ड विस्की है और आपकी निकोबार जिन है. आई थिंक एक रम भी वो उन्होंने नई प्रेजेंटेशन में दिखाई है, बट आई वाजंट श्योर ऑफ इट, वो उनका पुराना ब्रांड होगा. बट इसेंशियली लाइक 10% से भी कम इनका पीएनए कैटेगरी से आता है, ठीक? अगर आप इसको कंपेयर करो तो मैंने दो कंपनीज के साथ कंपेयर किया, ग्लोबल स्पिरिट्स एंड इंडिया ग्लाइकोल्स, क्योंकि 65% ऑफ एसोसिएटेड revenue comes from manufacturing, comes from IMFL, comes from ethanol, IMFL licensed and ethanol and all these other products, which is not like core branded revenue, right? तो अगर आप देखो तो ग्लोबल स्पिरिट 60% जो है वो अपना रेवेन्यू मैन्युफैक्चरिंग से कमाती है, 8% का मार्जिन करती है. तो इनका मार्जिन प्रोफाइल, क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू शायद इतना अच्छा नहीं है. And they get like 1.15 times sales multiple broadly, right? India Glycol similarly जो है एनर्जी बेस ज़्यादा है, उनका बायो एथेनॉल और उस सब की प्लांट्स है, बट वो मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, 70% रेवेन्यू वहाँ से आता है, और उनका सेल्स मल्टीपल 1.36 टाइम्स है, राइट? और 14% मार्जिन है, विच इज लाइक क्लोज टू वेयर एसोसिएटेड अल्कोहल रियली लाइक्स, राइट? तो आज एसोसिएटेड अल्कोहल को ऑन दैट रेवेन्यू यू आर सीइंग दैट बिकॉज द ब्रांडेड रेवेन्यू सेगमेंट इज ग्रोइंग फास्टर, तो शायद थोड़ा सा आपका ग्लोबल स्पिरिट और इंडिया ग्लाइकॉल से ज्यादा सेल्स मल्टीपल है, 1.79 टाइम्स का सेल्स मल्टीपल इनको मिला हुआ है. तो इट इज स्लाइटली ओवर वैल्यूड इफ यू लुक एट जस्ट ऑन अ लाइक टू लाइक बेसिस, बट पीयर्स के साथ अगर आप देखेंगे, बट ब्रॉडली उसी रेंज के अंदर है कि 1 से लेके 2 टाइम सेल्स मल्टीपल उस तरह से मिला हुआ है. इज दिस चेंजिंग? यस इट इज. द कंपनी इज ट्राइंग टू लॉन्च इट्स ओन ब्रांड, स्केल देम अप, इट्स जोग्राफिकली डाइवर्सिफाइंग. मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में गए, फिर उसके बाद दिल्ली आ रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं. They have already done really well in Kerala. So they are doing all of these things which are required to make them different from India Glycols and from Global Spirits. But broadly valuations उसी तरह से हैं, expectations उसी तरह से कंपनी की future revenues की जो बाकी कंपनियों के अंदर है, right? Now 2-3 years from now, let's try to imagine what can happen in this company. तो ये मैनेजमेंट की गाइडेंस है, मतलब उन्होंने एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया था जहाँ पे उन्होंने कहा था दैट इन द नेक्स्ट 2 to 3 years they will get to some 2,000 crores in revenue, out of which 50% will be from the IMFL proprietary segment, right? अब आप इसको समझने की कोशिश करो कि जहां पर भी ब्रांडेड सेल्स होती है, जहां पर भी IMFL प्रोप्राइटरी की सेल होती है, उनको रेवेन्यू मल्टीपल्स बहुत ही बेहतरीन मिलते हैं, क्योंकि द मार्केट एक्सपेक्ट्स दैट दे विल ग्रो इवन फर्दर बिकॉज द ब्रांडेड सेल्स कैन जस्ट टेक ऑफ इन न्यूअर लोकेशंस थ्रू न्यूअर मीन्स, एंड द ब्रांड रिकग्निशन इज स्ट्रॉन्ग इनफ, तो वो कंपनियां बढ़ती हैं, राइट? इसलिए पिकार्डली को 8 टाइम्स ब्रांडेड रेवेन्यू मिलता है, रैडिको को 7 टाइम्स ब्रांडेड रेवेन्यू मिलता है, ABDL को 4.92 टाइम्स ब्रांडेड रेवेन्यू मिलता है, तिलक नगर को 5 टाइम्स ब्रांडेड रेवेन्यू.
आज के टाइम में मिलता है, राइट? अगर हम यहाँ पे एक असम्पशन रखें कि लाइक व्हाट इफ दिस कंपनी गेट्स अ 4 टाइम सेल्स मल्टीपल ऑन इट्स ब्रांडेड रेवेन्यू विच कम्स आउट 2 और 3 years फ्रॉम नाउ, राइट? तो वो 1,000 करोड़ पे 4 टाइम्स का सेल्स मल्टीपल, 4,000 करोड़ वहां से आ जाता है। एंड देन दे ऑल्सो हैव 1,000 करोड़ ऑफ अदर रेवेन्यू विच इज फ्रॉम अदर सेगमेंट्स, उसको हम 1 टाइम्स का सेल्स मल्टीपल दे देते हैं। हम वो ग्लैकोल्स वगैरह से कंपेयर करते भी नहीं है, हम बस 1 टाइम्स का सेल्स मल्टीपल दे देते हैं। ये 5,000 करोड़ की कंपनी हो जाएगी फ्रॉम द करेंट 2,000 करोड़ दैट इट इज करेंटली, एंड दैट इज अ केगर ऑफ 35%। बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, राइट? ये एक्सपेक्टेशन टेकन इनटू अकाउंट ही नहीं है। और आप वो सोचिए कि जिस दिन ये 50-50% हो जाएगा, उस दिन कोई ऐसा इंसान भी आएगा जो एंटिसिपेट करेगा कि ये 80% ब्रांडेड और 20% अदर रेवेन्यू हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस और आगे जाएगा। बट आई एम नॉट इवन कंसिडरिंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग ऑन अ बेस केस 35% केगर इज नॉट बीइंग टेकन इनटू अकाउंट। इस कंपनी को वैसी वैल्यूएशन दे रखी है कि 2-3 years में आप ब्रॉडली 35% केगर इससे कमा सकते हैं। राकेश झुंझुनवाला जी ने कहा था कि चेंज हैपेंस बट इट हैपेंस स्लोली देन इनिशियली एंटिसिपेटेड। तो आप इसमें 4 साल का भी वो लगा सकते हैं, क्योंकि टेक लाइक इनिशियल वैल्यू है 2,000 करोड़, 4 साल बाद आप कह सकते हो कि 5,000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से वैल्यूएशन वहां पे मूव कर रही होगी और कितना केगर बन रहा होगा। बट वॉट इफ वी टेक दिस फर्दर, वॉट इफ वी टेक बियॉन्ड द मैनेजमेंट गाइडेंस, देन वी लुक एट 4 और 5 years फ्रॉम नाउ, वी से दैट कोई गाइडेंस नहीं है बट इवेंचुअली लाइक जो IMFL ब्रांडेड रेवेन्यू है वो 70% ऑफ रेवेन्यू बन जाएगा। अब मार्केट कैप ऑफ लार्जेस्ट प्लेयर्स देखिए आप, राइट? ABDL का 15,000 करोड़ है, तिलक नगर का 10,000 करोड़ है, पिकाडली का 7,000 करोड़ है। देयर इज ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन, राइट? कि अगर 5 साल 6 साल बाद होगा तो इस वैल्यू की भी कम वो हो जाएगी, बट उसको भी हम छोड़ देते हैं। लेट अस जस्ट ट्राई टू टेक 15,000 करोड़ एज एक सॉर्ट ऑफ अ बेंचमार्क, कि कंपनी का 70% रेवेन्यू ब्रांडेड से आ रहा है, वो बहुत अच्छी सेल्स ग्रोथ कर रही है, सब कुछ सही जा रहा है, and they get somewhere around like ABDL। उस केस में like even if it happens in 8 years, I'm not even saying 4 or 5 years, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 8 साल में भी होता है और 15,000 करोड़ तक की कंपनी पहुंच जाती है, तो द केगर देयर इज अबाउट 28%, which doesn't seem to show in the current valuations. So clearly, there's an expectation mismatch where the expectation of what this company can possibly be is not being taken into account at the current valuations. And similarly, if like one hit brand happens, right? जैसा पिकाडली के लिए इंजरी हुआ, या फिर आइकॉनिक वाइट आपके ABDL के लिए अगर ऐसा कोई ब्रांड आ जाता है जो एकदम से हिट हो जाए, एकदम से मिलियनर ब्रांड बन जाए और वहां से सक्सेसफुल हो जाए, तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है। नाउ Why am I saying that something like this can happen? Because आप मैनेजमेंट की बात सुनेंगे तो आपको दिखेगा कि वो एम्बिशन कैसा है। अब इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे या लॉन्ग टर्म बिजनेस परफॉर्मेंस देखेंगे कि किस तरह से इनका रेवेन्यू कहाँ से शुरू हुआ था, किस तरह की इन्होंने डील बीच में करी, अब वो कहाँ पर पहुंच गया है, तो आपको समझ आएगा कि वो किस तरह का एम्बिशन इस कंपनी के अंदर है, जो कि मार्केट फॉर सम रीजन बिल्कुल भी अकाउंट में नहीं ले रहा है। और यहीं पर ही मल्टी बैगर्स बेसिकली बनते हैं। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से दैट इफ दिस कंपनी कैन बी 10x इन द नेक्स्ट 5 to 7 years, क्योंकि हर कोई ये कहता है कि दिस इज द नेक्स्ट रैडिको खैतान। रैडिको खैतान इज 40,000 करोड़, पे अगर 20,000 करोड़ भी कहूँ तो 10x हो गया, राइट? 5 to 7 years में क्या वो हो सकता है, मुझे नहीं पता। बट आई थिंक यू कैन मेक अ वेरी रीजनेबल केस दैट इन द नेक्स्ट 2 to 3 years, or maybe 2 3 to 4 years, it can sort of double. And having a sense of that in a company is like the only like forward looking thing which we can do। हम उससे ज़्यादा आगे सोच ही नहीं सकते हैं, और उसके आगे काम उन लोगों का है जिनकी 60% होल्डिंग है। हम तो बहुत छोटी ही होल्डिंग करेंगे, राइट? और अभी रिसेंटली अगर आप देखो कि 60% होल्डिंग में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्रमोटर ने रिसेंटली थ्रू अ प्रेफरेंशियल कन्वर्शन अपनी स्टेक होल्ड को इंक्रीज किया है, वेरी रिसेंटली, राइट? दे कन्वर्टेड देयर वारंट्स फ्रॉम 475 रुपीज, और उन्होंने अभी अभी अपनी स्टेक होल्डिंग को इंक्रीज किया है। जब भी इस कंपनी में स्टेक होल्ड इंक्रीज हुआ है तो बहुत ही बढ़िया चीज़ें हुई हैं किसी ना किसी तरीके से। जो लास्ट टाइम प्रमोटर ने खरीदा था, मैं आपको ये चार्ट में दिखा रहा हूँ, वहां से 154% अप है बेसिकली कंपनी इन लाइक 2 years, और वो इम्प्लाइड की अगर उसका 58% के करीब आता है। सो यू कैन सी दैट द प्रमोटर नो समथिंग, दे प्रॉब्ली सी अ स्टोरी, और उनका ज्यादा पैसा लगा हुआ है। फॉर दिस 2% स्टेक दैट दे हैव इंक्रीज, दे हैड टू पुट इन 16 करोड़, राइट? तो हमारा इंक्रीमेंटली बहुत ही कम पैसा जाएगा, बट द प्रोमोटर इज पुटिंग लाइक स्किन इन द गेम, राइट? पर इसमें कुछ एंटीथेसिस रिस्क फैक्टर्स भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडर करनी, राइट? मैंने ये देखा है कि इनके ब्रांड लॉन्चिंग में बहुत स्लो प्रोग्रेस चल रहा है। जो RTD शायद पिछले क्वार्टर में लॉन्च होनी चाहिए थी, उससे पिछले क्वार्टर में लॉन्च होनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हुई है, राइट?
इनकी एक प्राइवेट कंपनी माउंट एवरेस्ट ब्रूरीज करके जो स्टोक बियर बनाती है, उसका आप वेबसाइट भी सर्च करेंगे तो इट्स अ वेरी इंटरैक्टिव वेरी फन सॉर्ट ऑफ वेबसाइट दैट आई सॉ। उनकी प्राइवेट एंटिटी की अगर ब्रांड कोई चल जाती है, राइट, तो मुझे ये डर है कि कहीं फोकस सारा वहां पे शिफ्ट ना कर जाए, क्योंकि इसको उन्होंने एसोसिएटेड अल्कोहल में मर्ज करने की भी कोशिश की थी पहले, बट इट डिडंट वर्क आउट बिकॉज द स्वैप रेशियो वाज रियली वेरी बैड. And then this company has always had corporate governance issues, and maybe that is the reason why the market is not giving it the kind of valuations that probably it deserves. So when it comes to my judgment, my disclosure, this is the second largest position in my portfolio right now. I'm buying even more. मुझे पता नहीं है कि कहाँ पे exactly like the valuation the position size that I will have will sort of end. But RateGain के बाद ये मेरी पोर्टफोलियो में सेकंड सबसे बड़ा हिस्सा है. एंड इन दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो विच इज़ जस्ट द मेजर थीसिस वाला पोर्टफोलियो, जहाँ पे मैं कुछ कंपनी में ऐसी में इन्वेस्ट करता हूँ जहाँ पे कोई प्रॉपर थीसिस बन सकती है, नॉट इन अ स्पेशल सिचुएशन, वहाँ पे दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट होल्डिंग. दोज आर द ओनली टू मेजर होल्डिंग्स आई हैव इन दैट पोर्टफोलियो. तो दैट इज माई डिस्क्लोजर. आई विल कीप ऑन बाइंग फ्रॉम द मार्केट इफ आई फील कि इसी रेंज में वैल्यूएशन कंसोलिडेट करती है, या अगर नीचे भी जाती है तो आई वोंट बी अफ्रेड टू make my position larger. So this was about associated alcohol. I hope you enjoyed it, and I hope that you learned something about market caps, about expectations, about margins, and how these three things sort of play together. So yeah, see you in the next video.